સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણપત્ર પણ આપ્યા છે। આખો મામલો એમપી એમએલએ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો એમપી એમએલએ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીએ તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો એમપી એમએલએ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। अदालते आ केस माटे 2 जान्युआरी 2021 रोज सुनावणी करશે। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है, तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूं और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए एवं मेरे जान को खतरा है। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए एवं मेरे जान को खतरा है। स्मृति ईरानी पर लाग्यो भ्रष्टाचारનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણપત્ર પણ આપ્યા છે। આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ।
અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ. આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું. વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે. વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોની માનીને તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે. આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે. અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે. સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ. અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ. આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું. વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે. વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોની માનીએ તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે. આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે. અદાલતે આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે. क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे. मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया. माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए. मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला. और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए. इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए. मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर. मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ. मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ. बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई. सत्य में उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है. मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है. मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ,
और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए, एवं मेरे जान को खतरा है। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है, तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर? मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ। मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में सत्य। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए, एवं मेरे जान को खतरा है। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણપત્ર પણ આપ્યા છે। આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી।
સૂત્રોની માનીને તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો એમપી એમએલએ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવા નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીએ તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો એમપી એમએલએ કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલતે આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया और आज मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए, एवं मेरे जान को खतरा है। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે।
વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણપત્ર પણ આપ્યા છે। આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીને તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલત આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। સ્મૃતિ ઈરાની પર લાગ્યો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ। અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની પર 25 લાખની માંગનો આરોપ। આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર વર્તિકા સિંહે ઠંડીની સિઝનમાં અમેઠીનું રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું। વર્તિકાએ આજે સવારે કેન્દ્રીય મંત્રી અને અમેઠીના સાંસદ સ્મૃતિ ઈરાની અને તેના પર્સનલ સચિવ સહિત 3 લોકો પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે। વર્તિકાનો આરોપ છે કે કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના સભ્ય બનાવવાના નામ પર તેની પાસેથી 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી। સૂત્રોની માનીએ તો વર્તિકાના વકીલે કોર્ટમાં સ્મૃતિના નજીકના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અશ્લીલ ચેટિંગના પ્રમાણ પણ આપ્યા છે। આખો મામલો MP MLA કોર્ટમાં ફાઇલ કરવામાં આવ્યો છે। અદાલતે આ કેસ માટે 2 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ સુનાવણી કરશે। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है, तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ। मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में सत्य।
माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए एवं मेरे जान को खतरा है।